So, hello and welcome back to my channel, Average Aspirant. My name is Aditya Arvind Pandey, and I've appeared for UPSC CSE Interview 2025. So, the agenda of today's video is to get a basic idea about notes making from the perspective of UPSC mains examination. And in this video, I'll be sharing my GS1 Indian Society notes. These notes are already uploaded on my Telegram channel, the link of which you'll find in the description box below. So let's move ahead. So whenever you approach a subject with respect to notes making, the first thing that you should keep in mind that you should know what the syllabus says about that subject. So when we talk about Indian society from GS1, so let's see what the syllabus says. The syllabus here says that salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty, developmental issues, urbanization, problems and the remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism, secularism. So you can see there are a lot of keywords mentioned over here. So how we move ahead with the video. So I have picked one topic, urbanization. उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए, द बेसिक आइडिया दैट गोज बिहाइंड नोट्स मेकिंग, एंड आई विल शो माय नोट्स एंड आई विल शो माय वन ऑफ माय आंसर आल्सो ऑन द अर्बनाइजेशन टॉपिक. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल सी 2025 जीएस का पेपर आल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो यस, कमिंग बैक अगेन, सो विल बी डिस्कसिंग अर्बनाइजेशन. सो आपको पहले बता दूंगा मैं यहाँ पे कि नोट्स कैसे बनाने हैं. सो व्हेनेवर यू गो अहेड विद नोट्स मेकिंग, यू शुड नो द सिलेबस एंड कीवर्ड्स. तो सिलेबस अपन ने यहाँ पे देख लिया एंड कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड्स अपन ने काफी देख लिए. तो एक अर्बनाइजेशन अपन ने पिक किया, उसको अपन आगे देखने वाले हैं. सो लुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन whenever you approach a subject. So let's see our 2025 paper from the perspective of Indian Society GS1. Yes, so here it is. So ये 2025 का मेंस का पेपर है और 8 9 10 क्वेश्चन आप 8 9 10 क्वेश्चन देखोगे आप. सो it says that how does smart city in India affect the issues of urban poverty and distributive justice. So yeah, this can be taken from taken into Indian society. The ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. सो यार आई डोंट नो ये क्यों यहाँ पे पूछा है, एथिक्स का सवाल लग रहा है, पर ठीक है, इंडियन सोसाइटी में डाल के पूछ लिया. सो डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर. सो ये तीन क्वेश्चन आए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी से, एंड लास्ट के तीन क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे. these are 15 marker question. Does tribal development in India center around two axes, those of development and of rehabilitation? ठीक है, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विथ एम्फेसिस ऑन environmental protection could come in conflict with poor people's needs in a country like India. So how do and last question says that how do you account for growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. So yes, the questions are not easy. You can see the questions are pretty tricky और in depth, मतलब in depth थोड़ी चाहते हैं वो आपसे कि थोड़ी knowledge हो आपके पास. So yes, the questions are pretty tough. So you can see the total weightage of Indian society comes out to be 45 plus 30, 75 marks. ठीक है. So yes, यहाँ पे मैंने 2025 का पेपर दिखाया है. If you really want to study into the depth, then you should go and look for at least 5 to 10 years of previous year questions and get a hang of the subject. ठीक है. So coming back to the notes. So what the topic we chose so that I could explain to you how note making goes. So urbanization. तो अगर urbanization के बारे में अगर आप देखोगे तो बिफोर इवन मेकिंग नोट्स यू शुड नो दैट कि कुछ चीजें आपको तो ऑब्वियसली आपके नोट्स में होनी चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है कि आपके नोट्स में क्या क्या होना चाहिए. तो अगर आप अर्बनाइजेशन के बारे में नोट्स बना रहे हो तो एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, कुछ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली आपके पास होना चाहिए, एंड व्हाट इज द आइडिया दैट गोज बिहाइंड अर्बनाइजेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड हाउ इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैपनिंग. ठीक है, ऐसे सडनली तो कुछ नहीं हो रहा है पूरा. इट गोज मतलब whenever you approach the process you go look into a life cycle approach. ठीक है, तो कैसे कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है. इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली थोड़ी इश्यूज देखेंगे, आपके नोट्स में होने चाहिए. ठीक है, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन. दीज आर ऑल दोज बेसिक स्टफ दैट यू कैन मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो इसके बारे में क्या क्या आपके नोट्स में होना चाहिए बिफोर इवन मेकिंग नोट्स. तो अर्बनाइजेशन के इम्प्लीकेशन अगर आप देखोगे तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं. ठीक है, कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने नेगेटिव इम्प्लीकेशन लिखे हैं कि सोशियो इम्प्लीकेशन क्या होगा, सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगा, वुमेन पे क्या अफेक्ट करेगा, स्लम्स. ठीक है, धारावी डेवलपमेंट का इशू है, स्लम से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिग्रेडेशन हो रही है. ठीक है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, लो इनकम हो रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है. ठीक है,
फिर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है. सम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन अर्बन एग्लोमरेशन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दे हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है अर्बन एरियाज में. ठीक है. और एक माइग्रेशन भी एक सोशल इम्प्लीकेशन हो सकता है. So yes, these things should automatically strike to your mind and you should keep that in mind कि ये सारे आपके नोट्स में होना चाहिए. ठीक है. फिर when we moving ahead with that, आपको सोल्यूशन भी दिमाग में कुछ रखने चाहिए कि अगर आपने इतने सारे नेगेटिव चीजें बताई हैं then you should provide some solution also and that should be in your notes. तो सोल्यूशन में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है. वन ऑफ द स्कीम दैट आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ वाज स्मार्ट सिटी मिशन. ठीक है. बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी का कोलैबोरेशन भी होना चाहिए. सो ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर इन योर नोट्स. Last but not the least, talking about few cherry points that should be mentioned in your notes with respect to urbanization is some data. So whenever we think of urbanization, the first ministry that should come in your mind is Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है. The second international body UN Habitat, CPCB से कुछ pollution का भी data ले सकते हैं यहाँ पर. एंड थिंकर और थियरी, थिंकर फॉर थियरी. अर्बनाइजेशन की थियरी भी मैंने बताई थी, कुछ प्रोसेस है और क्यों हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई थिंकर अगर आपके पास है देन इट कैन ऐड अ सिग्निफिकेंट डेप्थ टू योर नोट्स आल्सो एंड सिग्निफिकेंट डेप्थ टू योर आंसर्स आल्सो. ठीक है. And moving ahead with reports of committees and international organizations, so these can also add a significant value to your notes. Last but not the least, coming back to what I what I did for GS1, so I referred फॉर मेकिंग बेसिक नोट्स, आई रिफर्ड अ टॉपर नोट्स, जहां से मैंने अपने नोट्स खुद के बनाए, थोड़े कॉपी करके, थोड़ी डेटा लेके, थोड़ी डेफिनेशंस लेके. सो टॉपर का नाम था मेरे हिसाब से श्रुति शर्मा. शी इज रैंक 1. द ईयर आई डोंट रिमेंबर बट शी हैज अ टेलीग्राम चैनल. यू कैन फाइंड जीएस1 नोट्स ओवर देयर. एंड वैल्यू एडिशन जो मैंने की अपने जीएस में, दैट वाज डन बाय राइट स्मार्ट. मैंने किया था शिविन सर का. सो मतलब ही सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मेरे नोट्स में भी मेंशन्ड है वो काफी राइट स्मार्ट से भी लिए गए हैं उसमें. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड कीप इन माइंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स. एक कीवर्ड जो मेरे बस दिमाग में आ पाया, जैसे गेटोइजेशन. जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ गेटोज. सो दैट इज अ प्रोसेस. तो ऐसे और सारे कीवर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हो और आप आंसर भी लिख रहे हो तो आपको कीवर्ड्स भी लिखना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो यस, सो दिस इज द बेसिक आइडिया दैट गोज बिहाइंड नोट मेकिंग. अगर आप मतलब यू कैन नॉट जस्ट जंप एंड हैप्पैज़र्डली स्टार्ट मेकिंग नोट्स, कुछ भी लिखने लगो. एक बेसिक चीज आपको होनी चाहिए कि जब भी आप अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें, डेफिनेशन, डेटा, एक आइडिया बिहाइंड अर्बनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड वेरियस अदर जो आपको नोट्स मेंशन करने हैं, सोल्यूशन मेंशन करने हैं उसके, अर्बनाइजेशन को कैसे टैकल करना है. और बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. अर्बन मोबिलिटी का सोल्यूशन भी हो सकता है. ठीक है. ई बस, हाइड्रोजन बसेस, ठीक है, HCNG बसेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें जो आप सोल्यूशन में और ऐड कर सकते हो. ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ बस यहाँ पे. गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड वैल्यू एडिशन, डेटा फ्रॉम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यूएन हैबिटेट, सीपीसीबी, थिंकर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो यस, लेट्स सी माय नोट्स. सो ये मेरे नोट्स हैं एक्चुअली. ठीक है. सो आई हैव रिटन फ्यू थिंकर्स इन द स्टार्ट इटसेल्फ. सो दीज आर टेकन फ्रॉम चैट जीपीटी. यू पुट द कीवर्ड्स एंड गिव अ डिसेंट प्रॉम्प्ट that suggest some thinkers with respect to the keywords mentioned above from the perspective of GS1 UPSC मेंस. ठीक है. ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए आप, तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से वो एक आपको हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स के ऊपर वो थिंक कर देगा. जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे गांधी जी, डाइवर्सिटी पे नेहरू जी ने क्या क्या बोला हुआ है, रोल ऑफ वुमेन पे ये मैंने पॉलिटिकल साइंस से उठाया था, और बहुत सारी सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर. एंड ऑल दैट यू विल फाइंड इट ओवर हियर. सो your job is to read those notes. If you want, you can pick some points and add to your own notes. And I don't think copying them in entirety would add some value, क्योंकि आप कुछ सीखोगे नहीं उसमें से, बस मतलब कॉपी पेस्ट ही हो रहा है. बट अगर आपके नोट्स बने हुए हैं और आप आंसर राइटिंग में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ वैलिडेशन करना है, तो देन यू कैन यूज दोज नोट्स. सो अर्बनाइजेशन एक टॉपिक देख लेते हैं. तो जहां से आपको मैं बता भी दूं कि जो मैंने आपको ऊपर बताया एक स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग का, वो मैं सही में फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज द टॉपिक. फ्रॉम हियर द अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स. तो व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अगर आप देखोगे तो सिंपल डेफिनेशन यू शुड हैव कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज रिजल्टिंग इनटू चेंज इन ऑक्यूपेशन, एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यूज. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन दैट यू कैन राइट फॉर अर्बनाइजेशन. सो फ्यू जैसे मैंने बताया था कि इफ यू वांट टू राइट सम थियरी, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज द आइडियोलॉजी दैट गोज बिहाइंड अर्बनाइजेशन. दैट इज इंडिविजुअलिज्म, heterogeneity in opposition to homogeneity, specialization, materialism. So these are the basic ideology that you can write from the point of theory. अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन, लाइफ साइकिल ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन, लाइफ साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन देखोगे तो पहले अर्बन एग्लोमरेशन होते हैं, उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, फिर आउट ग्रोथ होता है जैसे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, फिर ओवर अर्बनाइजेशन,
ठीक है, फिर सब अर्बनाइजेशन एंड रिजल्ट फाइनली काउंटर अर्बनाइजेशन बैक टू रूरल एरियाज. सो दीज आर स्टफ दैट आई कुड यूटिलाइज फ्रॉम राइट स्मार्ट एंड आई मेड माई ओन नोट्स फ्रॉम दैट. तो मूविंग अहेड विद प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे? सोशियो कल्चरल फिनोमिना, इकोनॉमिक प्रोसेस, जोग्राफिकल इंटीग्रेशन भी होगा. ठीक है, सोशल एस्पेक्ट्स में देखोगे तो फैमिली, किनशिप, आई एम नॉट रीडिंग ऑल दोस बेसिक पॉइंट्स. सो आई जस्ट वांट टू शो कि जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताया, दैट आई कुड, एम आई रियली फॉलोइंग इन माय नोट्स और एंड एज वेल एज इन माय आंसर्स आल्सो. So this is the basic stuff that you can write for process of urbanization. Sociocultural phenomena है, एक economic process है, एक geographical integration है, social aspect में family and kinship में भी affect करता है, breakdown of joint nuclear family women पे affect करेगा कि women leading family urban areas में देखोगे. ठीक है, less role of family in education, privacy होती है when we talk about urbanization, individualism होता है when we talk about urbanization, interpersonal relations are also affected, demography is also affected, there is a implication on individual also, positive implication and negative implication. Implication दोनों टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव implication on human देखोगे तो सोशल मोबिलिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज. एंड नेगेटिव implications देखोगे लैक ऑफ आइडेंटिटी, एक्सप्लॉइटेटिव लेबर. ठीक है, मार्जिनल मैन का एक कॉन्सेप्ट है. सो एंड वेरियस अदर थिंग्स. सो दीज वेर माई नोट्स एंड जो यहाँ भी मैंने डिस्कस किया है, दीज वेर ऑल एडेड फ्रॉम राइट स्मार्ट एंड दीज वेर माई नोट्स दैट आई कॉपीड फ्रॉम द टॉपर्स नोट्स. सो बेसिक आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, थोड़ी डेटा लिख ली सेंसस की. सेंसस 2011 की 17% तो पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन स्लम्स. यूएन हैबिटेट का एक डेटा लिख दिया कि 104 मिलियन पीपल आर स्लम ड्वेलर्स. सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन मिलेगी बेसिकली, जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी कि आपके नोट्स में होनी चाहिए. तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन देखोगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अर्बन फ्लड्स की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कि स्पेस स्कैरसिटी है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, छोटे घर हैं और बहुत महंगे घर हैं. सीवेज मैनेजमेंट का इशू है, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक कंजेशन. सो एंटायर पेज कैन बी रिटन ऑन दैट. आई जस्ट राइट वन और टू वर्ड्स रिलेटेड टू दैट. मैं एक पूरी लाइन नहीं लिखता हूँ कभी भी, और आई कैन इलेबोरेट इट फर्दर. ठीक है, एनर्जी क्राइसिस भी है. और पॉलिटिकल इश्यूज देखोगे तो नो मेयर्स इन बिग सिटीज, द मेयर की पोस्ट रिमेन वेकेंट. ठीक है, ऑफिसर्स जितने मुंबई में चाहिए, दैट इज मुंबई में कितने ऑफिसर्स हैं? 938 ऑफिसर्स पर लाख पीपल. और न्यूयॉर्क में देखोगे तो 5400 ऑफिसर्स पर लाख पीपल. सीपीसीबी का डेटा कह रहा है कि 65% ऑफ द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इज अनट्रीटेड इन अनट्रीटेड इन ओपन ड्रेन. तो इतना परसेंट वाटर अनट्रीटेड हो रहा है अपने ड्रेन से. ठीक है, सोशल टेंशन भी हैं, जुवेनाइल के इश्यूज हैं, क्राइम है, रेप है, एंड वेरियस अदर थिंग्स. यू कैन सी देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन एंड आई गेस आई हैव कवर्ड इट कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, व्हेन यू लुक इनटू द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्बनाइजेशन, तो वेरियस थिंग्स यू कैन राइट रिलेटेड टू सॉल्यूशंस. ठीक है, आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट की स्कीम, नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, एनजीओ एंड कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर. और उसमें देखोगे तो इंक्लूसिव सिटीज एक इनिशिएटिव है टू ब्रिंग लो इनकम ग्रुप्स टू इनटू द मेन स्ट्रीम. सिटीज को इंक्लूसिव बनाना है. ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सीवेज वाटर मैनेजमेंट, एसडब्ल्यूएम, वाटर सप्लाई. ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं अर्बन मतलब आवास योजना के अंडर लो इनकम मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए घर बनाना है. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्लीन एनर्जी इंसेंटिव्स. और कमिंग बैक टू हियर, स्मार्ट सिटीज, ग्रोइंग ग्रो बिलियन ट्रीज एक इनिशिएटिव था. और अर्बन फॉरेस्ट्री, जैसे हैदराबाद का एग्जांपल लिख सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री में. सो यस, वेरियस सॉल्यूशंस आई हैव रिटन ओवर हियर. एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप यहाँ पे देखोगे तो जल शक्ति अभियान, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ओके, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, अमृत इनिशिएटिव है, तो उसके अंदर हम लोग वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट देखते हैं. म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए गए हैं इंदौर, हैदराबाद, सूरत में. रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स विथ एलईडी. और एक मैकेंसी की रिपोर्ट कहती है कि सिटीज कंट्रीब्यूट 65% टू जीडीपी एंड 58 सिटीज कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ जीडीपी. सो यस, सिग्निफिकेंट जो हमने पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी देखा था अर्बनाइजेशन के. एंड या दिस इज लास्ट एक मैंने ऐसे वैल्यूडेशन के लिए लिखा था, अर्बन ट्रैप. सो यस, यू कैन सी these notes are pretty comprehensive and any type of questions that come with respect to the urbanization, so you can pick up some cherry points from here and mold it into your own answer. और थोड़े थोड़े आप पॉइंट्स वहां पे फेंकते जाओ. सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अर्बनाइजेशन पे एंड विल एंड द वीडियो ओवर हियर. यस, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय टेस्ट. या सो 15 मार्कर क्वेश्चन है एंड आई हैव स्कोर्ड 7. तो ठीक है, टेस्ट में इतने मिल गए, ठीक ही है, नॉट बैड. सो अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन
both an enabler of economic opportunity and a driver of socio-spatial inequality. So, as the invigilator has pointed out, the answer should comprise of two major points: that urbanization is an enabler of economic opportunity and a driver of socio-spatial inequality. और comment करना है उसके बाद, मतलब basic चीजें आपको लिखनी है. So yes, whenever you begin your answer, there should be an intro. ठीक है, there should be all the two major points जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, that should be clearly mentioned. तो पहला जो point है, that says कि urbanization is an enabler, ये clearly mention होना चाहिए, and urbanization is the driver of socio-spatial inequality. ठीक है, this and अगर आप you're talking about inequality, then you should write a way forward. अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो तो एंड में आपका एक कंक्लूजन. ठीक है, सो यस, दिस शुड बी अ स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. सिंस इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, देन यू नीड टू राइट एटलीस्ट 12 to 15 points. So beginning with urbanization, as the question talks about urbanization, तो बेसिक आइडिया आपको डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन तो लिखनी पड़ेगी. अर्बनाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ प्लोरिफरेशन ऑफ अर्बन सिटीज which present various socio-economic opportunities. So I have written a basic definition that I made up on myself. मैंने आंसर एग्जाम लिखते ही मैंने बना लिया होगा. तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, currently 35% of the population reside in cities and it is expected to reach 60% by 2040. अगर आप कोई डेटा लिख रहे हो, then you should write a body associated with the data, then that adds a depth to your answer. तो यहाँ पे obviously this should be a little smaller. 4 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दो. But since I thought it is a 15 marker question, that I should write an elaborative introduction. But that still छोटा लिखता तो और अच्छा होता, but it doesn't look that bad also. थोड़ा डेटा वेटा भी आ गया और एक सिंपल डेफिनेशन भी आ गई और एक मिनिस्ट्री भी अपन ने यहाँ पे लिख दी है. ठीक है, फिर कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट कि अर्बनाइजेशन एज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग इन माई आंसर. तो कैसे अर्बनाइजेशन इज एन इनेबलर ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. तो सिटी एम्प्लॉय मोर देन 60% ऑफ वर्कफोर्स एज पर PLFS डेटा. तो मैं डेटा लिखता था, डेटा के लिखने के बाद मेरे को एक बॉडी लिखने की आदत होती थी. सो दैट एड्स अ रिलेटिव डेप्थ टू योर आंसर. तो यस, और इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू मेक अ सब हेडिंग और यहाँ पे आप ऐसे लिखो, बट दैट इज वेरी टफ एक्चुअली टू राइट वाइल यू आर एक्चुअली राइटिंग द आंसर एंड थिंक ऑफ अ सब हेडिंग एंड देन राइट अ पॉइंट. तो ये बहुत टफ होता है, बट दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. इफ यू आर एबल टू राइट इट इन दैट वे, देन ऑब्वियसली यू विल गेट सम मोर मार्क्स. फिर सिटीज ब्रेक द बैरियर ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अलाउस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ वर्कर. तो ये एक सोशल फिनोमिना लिख देते हैं यहाँ पे, एक ये इकोनॉमिक लिख देते हैं. ठीक है, अर्बनाइजेशन में लीड टू इंक्रीजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विद डाइवर्स सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, it provides for employment opportunities for skilled and unskilled workforce, MNCs and KPOs या BPOs in urban areas. तो थोड़े बहुत एग्जांपल भी आपको कहीं कहीं लिखने होंगे. So that will add a relative depth to your answer. Allows for entry of women into the workforce. और ये PLFS का डेटा है, that says 37% of women are in labor force. And people can upgrade their skills with vast scope of opportunities available. ये ऐसी it's a made up point that is not adding any value, but still 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया for the first part कि urbanization as an enabler of economic opportunity. The second part of the question says कि urbanization की वजह से socio-spatial inequality हो रही है. So it also leads to a ghettoization, that the keyword that I spoke about earlier. So I have mentioned it here. The growth of slums like Dharavi and Shadra in Delhi. Substandard lifestyle and diminishing standard of living. ठीक है. Poor sanitation and ventilation of houses. It leads to inequality on the basis of class. तो ये मैम ने एक कीवर्ड यहाँ पे दिया था, gentrification. So you can use it. Poor delivery of services and governance issues, growth of diseases and mental health problems, malaria and cholera. तो कुछ सेकंड टॉपिक को भी आपने लिख दिया कि अर्बनाइजेशन इसकी वजह से सोशियो स्पेशल इनइक्वालिटी हो रही है. So yes, all the points on the questions are addressed very well, but you still have more than half page left. Then you should write a way forward. So 6 + 5 11 points हो गए अपने, और वे फॉरवर्ड में 4 पॉइंट है. टोटल 15 पॉइंट्स अपन ने लिख दिए यहाँ पे. सो दैट द मतलब क्वेश्चन की डिमांड तो अपन ने पूरी फिलफिल कर दी है. तो मार्क्स अभी उनको देना होगा, तो कितना आपने कंटेंट लिखा है उसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे. सो इन वे फॉरवर्ड, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीज. ठीक है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस. यहाँ पे और एक एग्जाम्पल में आप कुछ लिख सकते थे पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस में, वट एवर यू थिंक ऑफ. प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज जैसे स्वच्छ भारत अर्बन, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स जैसे आवास योजना अर्बन. फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन इज एन
undeniable phenomena and requires immediate policy level attention with schemes like Smart City and Amrut. और मैम ने और ऐड करवा दी है जिनने भी कॉपी चेक की थी, cities for all inclusive urbanization. सो 7 नंबर मिले हैं 15 में से. यस, ठीक है, डिसेंट इनफ, नॉट बैड. और सम फ्यूचरी पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड. सिंगापुर का एक रोल मॉडल ले सकते हो, पब्लिक हाउसिंग मॉडल, पुअर पीपल इन अर्बन सिटीज, फॉर पुअर पीपल इन अर्बन सिटीज. ठीक है. सो या तो यहाँ पे अपन अर्बनाइजेशन देखा एज अ टॉपिक फ्रॉम GS1. वी सॉ हाउ वी लर्न हाउ टू मेक नोट्स. ठीक है. और मैंने अपने नोट्स दिखाए कैसे मैंने अर्बनाइजेशन भी बनाए थे, एक आंसर भी मैंने आपको दिखाया. एंड वी सॉ दैट GS पेपर फॉर 2025. So I guess, yeah, so that's it from my side. I'll see you another time with some another topic that I choose.